Good morning. Good morning, students. This is M.K. Grover, Assistant Professor, Doon Valley Institutes of Pharmacy and Medicines, Karnal. Students, today we are going to discuss a new chapter, new topic, that is suppositories. So today, basically, we study about suppositories, its classification, its advantages, disadvantages, how to method, how to preparations, evaluations, these things. So let's start the topic, suppositories. If I am talk to definitions, what is suppositories? Suppositories are सॉलिड डोसेज फॉर्म. क्या है स्पोस्ट्रीज? स्पोस्ट्रीज क्या होती है? सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है इंटेंडेड फॉर इंसर्जन्स इनटू ए बॉडी कैविटीज और ओरिफाइसेस. ओरिफाइसेस मींस रेक्टम, वेजाइना एंड यूरिथ्रा. वेयर दे मेल्ट, जहां पर ये मेल्ट होती है, एंड डिजोल्व जहां पर ये मेल्ट होती है किसके? फीमेल के बॉडी टेम्परेचर से डिजोल्व एंड एक्सर्ट द लोकलाइज्ड और सिस्टेमिक इफेक्ट, राइट? So this part is advantages. It avoid first pass effect. Second is it melt at body temperature. It gives localized and systemic action. क्या है ये? localized और systemic करता है action. Then it can be given to unconscious patient. It is easy to use for pediatrics and geriatric patients. Pediatrics, infants and geriatric old age. ठीक है? And useful to produce local effect and useful for rapid and direct effect in rectum. Useful to promote evacuation of bowel, convenient for those that causes GIT, irritations, vomiting, etc. कि जो इंटेस्टाइन है, जो बोल है, इवैक्यूएशन करता है, दैट प्रमोट्स द इवैक्यूएशन. रैपिड इफेक्ट है इसका, डायरेक्ट इफेक्ट इन रेक्टम, जो डायरेक्ट इफेक्ट है इसमें रेक्टम में. सेकंड है एडवांटेजेस. एडवांटेजेस मींस इरिटेंट ड्रग कैन नॉट एडमिनिस्टर्ड. जो ड्रग इरिटेंट कॉज करती है वो हम उसको एडमिनिस्टर्ड नहीं कर सकते. एम्ब्रेसमेंट्स टू पेशेंट्स को इसको लेने में थोड़ा परेशानी होती है. नीड टू स्टोर एट लो टेम्परेचर. इट कैन इजिली प्रिपेयर, हम इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं. कॉस्ट एक्सपेंसिव है. फ्लूइड कंटेंट ऑफ द रेक्टम इज मच लेस देन दैट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. वेरी इजी. दिस मे अफेक्ट द डिसोल्यूशन रेट. So move to the next part, that is suppositories. Rectal suppositories. Types of suppositories. First है rectal suppositories, vaginal suppositories, urethral suppositories, nasal suppositories and ear combs. So newer concept of suppositories क्या है? कुछ ऐसे concepts है जिनमें हम suppositories को tablet form में कर सकते हैं, layered में, coated suppositories and capsule suppositories. फर्स्ट है हमारा tablet suppositories, सेकंड है हमारा layered suppositories, थर्ड है coated suppositories, then coated suppositories. अब है हमारा tablet suppositories. tablet क्या है कि this type of tablets prepared by compressions like tablets. जो ये है tablets, हम इसको कैसे करते हैं? prepared by the compression method. Such type of suppositories used for rectal and vaginal purpose. Such type of suppositories are prepared in the almond like shape. Rectal tablets covered with the thin layers materials such as polyethylene glycol or protecting phase. So move to the second part, that is layered suppositories. In that type of suppositories are contains different drugs in different layers, so that ताकि incompatibility drugs can be separated from each other. हम इनमें अलग ड्रग्स पे, अलग लेयर पे, अलग जो डिफरेंट ड्रग्स है हम उसको यूज करते हैं ताकि इसके अंदर किसी भी ड्रग्स के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी ना हो. सिमिलरली ड्रग्स हैविंग डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट. कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, कैन बी इनकॉर्पोरेटेड टू कंट्रोल द एब्जॉर्प्शन रेट.
कोटेड suppositories में क्या है? In that type of suppositories contain polyethylene glycol, cetyl alcohol, etc. Those materials controls their disintegration rate to impart lubricant properties and to provide protection against during storage. कुछ suppositories ऐसी होती है, कुछ उनमें ingredient होते हैं, कुछ solvents होते हैं, polyethylene glycol, cetyl alcohol, etc. So those materials controls their disintegration rate. कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं उनमें जो डिसइंटीग्रेशन रेट होता है कि जो टैबलेट्स है किस टाइम पे वो ब्रेक होती है टू इम्पार्ट द लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी, जो कि उसकी लुब्रिकेंट प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करता है, एंड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एक्शन ड्यूरिंग स्टोरेज. नेक्स्ट है पार्ट हमारा कैप्सूल suppositories. So, soft gelatin capsules of different shapes and size are prepared in that type of suppositories. कुछ soft gelatin capsules अलग-अलग शेप में होते हैं, are prepared in that type of suppositories. In that type of capsule suppositories are filled with liquids, semi-solids or solids. ये कैप्सूल्स, ये कैप्सूल से हार्ड कैप्सूल एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल जो लिक्विड से फिल होते हैं, किसके साथ? लिक्विड के साथ, सेमी सॉलिड और सॉलिड के साथ. These type of capsules are increasing in popularity. जो ये है कैप्सूल, ये इसकी पॉपुलरिटी को इंक्रीज करते हैं. Then move to the next part, that is very important part from the point of examination point of view. Suppository basis क्या है? Suppository basis plays important role in the maintaining their shape, solidity, and also play important role when inserted into the body cavity. जो suppositories basis है always plays an important role, किसमें है? Maintaining their shape, solidity, and also play important role when inserted into the body cavity. There are large number of bases used, but theobroma oil and cocoa butter oil very important part, जो कि glycerol base and polyethylene glycol fulfill the above mentioned requirement. Some ideal properties of bases क्या है? It must retain the shape and size, जो कि shape and size को retain करता है. It should melt at body temperature, जो कि body temperature melt होता है. It should be non-irritant, ये non-irritant नहीं है. It should shrink sufficiently to remove from the mold. It should not interfere in release or absorption of drug. It should permit incorporation of drugs. It should be compatible with variety of drugs. It should be physically stable on drug, very easy. It should not be softened or hardened on storage. फर्स्ट है हमारा इट मस्ट रिटेन द शेप एंड साइज, ये अपनी शेप एंड साइज को रिटेन करके रखते हैं, ये उनको खाने में देखते हैं. इट शुड मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर, ये फीमेल के बॉडी टेम्परेचर से मेल्ट होते हैं. इट शुड बी नॉन इरिटेंट, ये जो इनका यूज है ये नॉन इरिटेंट है. इट शुड श्रिंक सफिशिएंटली टू रिमूव फ्रॉम द मोल्ड, जब इनको रखते हैं तो ये अपने मोल्ड से ये सफिशिएंटली रिमूव हो सकते हैं और ये श्रिंक हो जाते हैं ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए. इट शुड नॉट इंटरफेयर इन रिलीज और एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, ये किसी भी एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स के साथ रिलीज नहीं होते, ना ही इनका कोई इंटरफेरेंस है. इट शुड परमिट इनकॉर्पोरेशन ऑफ ड्रग्स. इनकॉर्पोरेशन क्या है कि जो ड्रग्स को आगे से परमिट देते हैं, इनको आगे व्हीकल के रूप में एज ए सर्कुलेशन पार्ट. इट शुड बी कंपैटिबल विद वैरायटी ऑफ ड्रग्स, जो अलग अलग ड्रग्स होती हैं, सेमी सॉलिड है, लिक्विड डोसेज फॉर्म है, उनके साथ ये कंपैटिबल होती हैं. इट शुड बी फिजिकली स्टेबल ऑन ड्रग, ये फिजिकली क्या है, साइज कैसा है, शेप कैसा है, स्टेबल रखता है जब हम इनको स्टोर करते हैं. इट शुड नॉट बी सॉफ्टन और हार्डन ऑन स्टोरेज, हम इनको अच्छी तरह से सॉफ्ट और हार्डन और स्टोरेज के रूप में यूज करते हैं. नेक्स्ट है हमारा, हमने पढ़ा है suppository basis क्या है, आइडियल प्रॉपर्टीज क्या है. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ suppository basis. फर्स्ट है ओलियो बेसिस और ओलियोजिनस बेसिस, वाटर soluble एंड वाटर miscible बेसिस और हाइड्रोफिलिक बेसिस, इमल्सिफाइंग एंड सिंथेटिक बेसिस. ओलियो बेसिस एंड ओलियोजिनस बेसिस, फर्स्ट है इसमें कोका बटर और थियोब्रोमा ऑयल. सेकंड है इमल्सिफाइड कोका बटर. थर्ड है हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, ठीक है, कोका बटर और थियोब्रोमा ऑयल. कोका बटर इज ए फैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रोस्टेड सीड ऑफ थियोब्रोमा कोका, जो
कोका बटर ऑयल है वो फैट ऑब्टेन्ड करता है कहाँ से, जो रोस्टेड सीड होता है ऑफ थियोब्रोमा कोका एट रूम टेम्परेचर। एक रूम टेम्परेचर पे इट इज येलोविश, ये पीला 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 सा आ जाता है इसमें, वाइट सॉलिड हैविंग ए फेंट agreeable chocolate like color, very easy. Chemically it is triglyceride. क्या है ये triglyceride? means combination of glycerin and one of different fatty acid, primarily of oleopalmistrin and oleodiesterone. primarily क्या है oleopalmistrin and oleodiesterone. it melt at 30 to 35 degree Celsius. अब है इसमें एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है? मेल्टिंग जस्ट बिलो द बॉडी टेम्परेचर, मेंटेनिंग द इट्स सॉलिडिटी एट यूजुअल रूम टेम्परेचर, रेयरली लिक्विफाई ऑन हीटिंग एंड सॉलिडिफाई ऑन कूलिंग। डिसएडवांटेज क्या है? रेंसिडिटी हो जाता है, स्टिक टू मोल्ड, लीकेज फ्रॉम बॉडी कैविटीज एंड कॉस्टली, and immiscibility with body fluids, chloral hydrate and lactic acid liquefied and polymorphism. Advantages क्या है? फर्स्ट, मेल्टिंग जस्ट बिलो द बॉडी टेम्परेचर, ये क्या है जो बॉडी टेम्परेचर है उसमें जल्दी ही मेल्ट हो जाता है। मेंटेनिंग इट्स सॉलिडिटी एट यूजुअल रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर पे ये अपनी सॉलिडिटी को मेंटेन करके रखती है। थर्ड है रेडली लिक्विफाई ऑन हीटिंग एंड सॉलिडिफाई ऑन कूलिंग, अगर जो इसको हम हीट करेंगे तो ये रेडली लिक्विफाई हो जाता है एंड और कूल पे ये जब ये सॉलिड होता है तो जब इसको कूल करते हैं तो ये अगेन सॉलिडिफाई हो जाता है। अब है डिसएडवांटेज। रेंसिडिटी क्या है? क्या फंगल वगैरह ग्रोथ लगना, केमिकल उसमें ग्रोथ होना, स्टिक टू मोल्ड। मोल्ड क्या है कि उसको जो मोल्ड होती है फिर उसको स्टिक करके रखता है। लीकेज फ्रॉम द बॉडी कैविटी, ये जल्दी से जो बॉडी कैविटी है वहां से ये लीक होना स्टार्ट हो जाता है। फिर है इसके बाद कॉस्टली, की जो सपोजिटरी बेसिस है इट्स वेरी हाई कॉस्टली है। इमिसिबिलिटी विद बॉडी फ्लूइड्स, जो बॉडी फ्लूइड्स है उसके साथ ये इमिसिबल होता है। क्लोरल हाइड्रेट और लैक्टिक एसिड लिक्विफाई, ये क्लोरल हाइड्रेट के साथ और लैक्टिक एसिड के साथ ये लिक्विफाइड होता है। देन पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म की जो अलग अलग जो कंपाउंड होते हैं, वन और टू और मोर कंपाउंड, तो अलग अलग उसमें जो कंपाउंड बनाते हैं उसमें ये पॉलीमॉर्फिज्म होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर लिक्विफाइड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। इमल्सिफाइड कोका बटर सेकंड है। सो emulsified coca butter, theobroma oil mainly used as a base when large quantity of aqueous solution are to be incorporated. जो emulsified theobroma oil है may be used as a base when large quantity of solutions are to be incorporated. ठीक है। तो so 5% glyceryl monostrate and 10% lentivax, 2 से 3% cetyl alcohol and 4% beeswax is recommended for emulsified theobroma oil. जो 5% ग्लिसरॉल मोनोस्ट्रेट है और 10% लैंटिक वैक्स है, 2 से 3% स्टाइल अल्कोहल है, हम इसमें एज ए थियोब्रोमा ऑयल के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। फिर है हमारा हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स। हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स आर यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ थियोब्रोमा ऑयल। एग्जांपल है हाइड्रोजनेटेड एडिबल ऑयल, कोकोनट ऑयल, हाइड्रोजनेटेड पी ऑयल, स्टीरिक एसिड, पाल्मिक एसिड एंड कैनल ऑयल। तो ये क्या है सारे हमारे हाइड्रोजनेटेड ऑयल आर यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ थियोब्रोमा ऑयल। अब है इसके बाद इसकी एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में क्या है? ओवरहीटिंग डज नॉट अफेक्ट द सॉलिडिफाइंग पॉइंट। ठीक है, हम इसको ज़्यादा ओवरहीट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो इसका सॉलिडिफाइड पॉइंट है, जो इसका एंड पॉइंट है, वहाँ से ये अपने आप को एक्शन शो नहीं करेगी। दे आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन एंड lubrication of the mold is not required. Their emulsification and water absorbing capacity are good. इसके बाद है इसकी डिसएडवांटेजेस। ऑन रैपिड कूलिंग दे बिकम ब्रिटल, अगर इसको हम ज़्यादा कूल करेंगे ज़्यादा तेज से तो ये बिकम ब्रिटल, ये टूट सकता है। व्हेन मेल्टेड दे आर मोर फ्लूइड देन थियोब्रोमा ऑयल एंड रिजल्ट इन ग्रेटर सेडिमेंटेशन ऑफ द एडेड सब्सटेंसेस। ठीक है।
इसके बाद है आपका वाटर सोल्यूबल एंड वाटर मिसिबल बेसिस और हाइड्रोफिलिक बेसिस। फर्स्ट है ग्लिसरोजिलेटिन बेस, सोप ग्लिसरीन बेस, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल। क्या है फर्स्ट? ग्लिसरोजिलेटिन बेस, सोप ग्लिसरीन बेस, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल। So, how to prepare glycerol base? First is when we add when we add water in glycerol, then fluctuating that is comes from the category glycerol base. These are the mixtures of glycerol and water and gelatin is equal to glycerol base. In the pharmaceutical lab, we have prepared the glycerol base. So, how the mixtures? It is a mixture of glycerin and water, which is made stiff by the addition of gelatin. When we add the gelatin in glycerol, soap, and water, then the warm water, then take the 22 and set the temperature 20 degrees Celsius. Then the glycerol base is prepared in the suppositories base, right? अब है नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज। इट इज कलरलेस, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसलूसेंट होता है इन नेचर, इट इज सॉफ्ट टू टच, अगर हम इसको टच करें बिल्कुल ही हल्का होता है, एंड मेल्ट्स एट 30 to 35 डिग्री सेल्सियस। दैट इज यूज्ड फॉर वेजाइनल स्पोस्टिस। क्या है ये? कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है एंड ट्रांसलूसेंट इन नेचर, इट इज सॉफ्ट टू टच एंड इट्स मेल्ट एट 30 to 35 डिग्री Celsius. Advantages क्या है? It melt at body temperature. It mix with body fluid. Body temperature पे होता है, body fluid के साथ mix होता है, not rancid है, इसमें कोई भी fungal growth, chemical growth नहीं है. It can be used to prepare suppositories using boric acid, chloral hydrate bromides, iodides, iodoform, etc. हम इसको प्रिपेयर suppositories है, हम इसको बोरिक एसिड के साथ यूज कर सकते हैं, क्लोरल हाइड्रेट ब्रोमाइड्स के साथ, आयोडाइड्स के साथ, आइडोफोन के साथ एक्सेट्रा। ठीक है। इसके बाद है आपका डिसएडवांटेजेस। डिफिकल्ट टू प्रिपेयर एंड हैंडल। हम इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर ये एंड हैंडल करने में थोड़ा इसमें डिफिकल्टी शो होती है। चांसेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ आती है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है कि जो मॉइस्चर जल्दी से एब्जॉर्ब कर दे, बिकम हार्ड ऑन ड्राइंग एंड सॉफ्ट इन कांस्टेंट स्टीरिंग विद द मॉइस्चर। लैक्सेटिव है इनका एक्शन, इनकम्पैटिबल विद टैनिक एसिड, फेरिक क्लोराइड एक्सेट्रा। ठीक है। इसके बाद है आपका पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल्स एंड मैक्रोगोल्स। सो पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल्स क्या है स्टूडेंट्स? दीज आर कॉमनली नोन एज कार्बोवैक्सीन एंड पॉलीग्लाइकोल्स। हम इसको कार्बोवैक्सीन की फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं। दीज आर अवेलेबल इन सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड स्टेट डिपेंडिंग ऑन मोलिकुलर वेट। डिपेंड करता है कि इन सबका मोलिकुलर वेट कैसा है। सो दोज polymers having the molecular weight between 200 to 1000 are liquids, and those having molecular weight higher than the 1000 are wax-like solid, very easy. So they are chemically stable होता है, physiologically inert substances होता है, and do not allow the bacterial और mold growth to take place. इनमें किसी भी प्रकार की बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती। ये फिजियोलॉजिकली इनर्ट सब्सटेंसेस होता है। ठीक है। एडवांटेजेस क्या है? केमिकल स्टेबल होता है, नॉन इरिटेंट होता है, देन डू नॉट अलाउ बैक्टीरिया, इसमें कोई बैक्टीरियल ग्रोथ को हम अलाउ नहीं कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट, प्रोवाइड प्रोलॉन्ग्ड एक्शन, do not stick to mold, and suppositories are clean and smooth in appearance. और इसकी डिसएडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है? हाइग्रोस्कोपिक है, इनकम्पैटिबल विद टैनिक, फ्लो लिक्विफाइड बेसिस है, हाई solubility leads to super saturation. soap glycerin suppositories soap glycerin suppositories gelatin is replaced with curd, soap or sodium citrate. Soap gelatin velocities evaluations of the actions of gelatin. Disadvantages of phases, which is the most important part, ये क्या है? फिर इसके बाद hygroscopic part है and protection from the atmosphere.
अब क्या है, इमल्सिफाइंग बेसिस, ये व्हाइट स्पोल है, मेगा स्ट्रेडियम है, मेसोपोल है। एडवांटेज क्या है, सॉलिडिफाई होता है रेपिडली, नॉन इरिटेंट होता है, लिक्विफिकेशन, ओवर हीटिंग हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी हो जाएगी खत्म। फिर है दे कैन एब्जॉर्ब फेयरली लार्ज अमाउंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन में, वाइट odorless है, क्लीन है, अट्रैक्टिव है, suppositories are produced, they are less liable to get rancid. Disadvantages क्या है, that should be not cooled rapidly in a refrigerator because they become brittle, very जो हमने पढ़ा है पीछे, they are not very viscous or melting, so the medicaments incorporated with the base settle down rapidly. Bitsuxone क्या है, consist of triglyceride, saturated vegetable fatty acids with varying percentage of partial esters and beeswax है इसमें, ठीक है। मासा एस्ट्रिनम क्या है, मिक्सचर्स ऑफ मोनो डाई ट्राइग्लाइसाइड्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, वाइट ब्रिटल ऑलमोस्ट odorless, टेस्टलेस है, मेल्टिंग पॉइंट है 33.5 टू 35 डिग्री सेल्सियस, अब अवेलेबल इन वेरियस ग्रेड्स में, ठीक है। अब है इसके बाद आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सो वी विल स्टडीज नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट पार्ट होगा वो हम नेक्स्ट जो होगी वीडियो मेरी उसमें हम करेंगे क्लियर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।